Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on road safety education, Sadak Suraksha, Jeevan Raksha, to help your child to be a safe road user. To learn more about accident-free technique by our speaker Anil Pantoji. To stimulate an awareness for improvement in road safety, our chairman Shri Subhashji Parmar has inspired and guided us to know the interesting ways by which you can teach your children about road safety to become a responsible driver, passenger, pedestrian and cyclist. Let's begin with our today's interesting webinar. Acharya Shri. A very happy morning to everyone. With warm greetings, I, Sonal Khabia, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, feel highly privileged to welcome you all to Vijay Vallabh Sunday Art. Today, we have come up with a very powerful, fascinating Facebook Live webinar with our eminent speaker, Inspector Mr. Anil Pantoji, on the topic Road Safety Education. Sadak Suraksha, Jeevan Raksha. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School, with the inspiration and guidance from our chairman, Sri Subhashji Parmar Sir, and members of the Education Committee, have organized this useful and informative webinar. Our vision is to empower the youth and bring all the stakeholders together on one platform to discuss and learn various aspects. With millions of lives endangered worldwide, road traffic accidents rank alarmingly high in the recent trend of present social issues. So, road safety education is thus crucial to save millions of lives and prevent injury. As it is said, prevention is better than cure. Thus, in order to give the importance to propagate the message of road safety, we have planned out today a webinar to give awareness about the importance of roads to all. So, everyone, let's be ready and invest your quality time to gain more knowledge about road safety education. सुरक्षित होकर काम कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए. So, let's be a responsible citizen. With this, I request our respected principal, Mrs. Snehal Khataukar Madam, to brief us about our school. Over to you, ma'am. Good morning to one and all. It's a great pleasure to welcome you all to Vijay Vallabh Sunday Art. I thank our today's eminent speaker, Shri Anil Pantoji, for accepting our invitation and presiding over the webinar on the topic Road Safety Education. Road safety is an issue of prime concern to all. Safety is as simple as ABC, that is, always be careful. So, we at Acharya Shri Vijay Vallabh School always make an attempt to be careful, and we train and guide our students towards various global issues on road safety by arranging workshops, conducting various activities and street plays to make them aware about it. So today, our main aim is to promote public awareness about road safety, as road accidents are among the biggest cause of death in our country. It is of vital importance for everyone to have traffic awareness and to understand and respect all the road safety rules. Life is precious. Be safety conscious. Safety is our number one priority. The key to safety is in our hands only. I wholeheartedly thank our chairman, Sri Subhashji Parmar Sir, for the enormous support given to us to arrange such an innovative and informative webinar. So let's move further
and gain useful tips on the topic road safety education and make this morning knowledgeable. Thank you. Over to you, Sonal. Thank you, madam. Now, I would like to introduce our today's guest of honor. On behalf of our school, I'm extremely glad to welcome our guest, Inspector Mr. Anil Pantoji, for today's webinar. Sir has retired from RTO faculty, CIRT Yashta MRA. Sir has been awarded with a Vocational Excellence Award for his outstanding service by Rotary Club of Pune Central. Sir has also been felicitated for the Most Public Services Oriental Official in 2016 for his excellent work. Sir has conducted more than 700 sessions on road safety. Sir is regular columnist in Marathi newspaper like Sakar, Lok Satta. Recently, in a COVID period, Sir has trained 3,500 PMPL drivers. So we are indeed very fortunate to have you with us this beautiful morning. Now, I request Sir to share his valuable views. Over to you, Sir. Thank you so much. So good morning to all. Today's presentation is in English, but we'll have interaction in Hindi as well as in Marathi. So don't worry, you can speak in, you can interact with me in any language. Today's training program is on road safety, and as per the request from school authority, we'll have in Hindi, Marathi presentation. So I will talk in Hindi as well as in Marathi. So don't worry. तो अभी सभी का स्वागत है और मैं I was working with RTO department for 35 years, 36 years, and in that department my main work was to issue license, to issue registration numbers, the fancy numbers. आपने देखा होगा कि आपके मोटरसाइकिल का जो नंबर होता है, कार का जो नंबर होता है, जो नंबर आपके दिमाग में याद रहता है, जो नंबर हम देते हैं, वो सब RTO का काम होता है. तो लाइसेंस हम देते थे, हम रजिस्ट्रेशन करते थे. साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि रोड में जो ट्रैफिक प्लानिंग होता है, सिटी में जो ट्रैफिक प्लानिंग होता है, वो सब प्लानिंग का काम भी RTO डिपार्टमेंट करते हैं. तो ये भी काम हमारा होता है. जैसे ही आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी हो या बस के बारे में जो प्रॉब्लम्स हो, ये सभी प्रॉब्लम्स RTO के द्वारा ही सॉल्व किए जाते हैं. तो और ये सब होने के बावजूद और एक काम जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. तो ये भी काम हमको देखना पड़ता है. साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आप जो बस से स्कूल आते हो, तो स्कूल का जो बस आता है उसका जो कोई कंट्रोलिंग होता है, ये भी काम RTO को ही करना पड़ता है. जो भी नियमावली होती है, जो भी रूल्स होते हैं फ्रेम करना, ये भी काम करना पड़ता है. और इस साथ ही साथ ये करते करते हम रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं. तो हम गवर्नमेंट को इसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेट करते हैं. और ये सब करने के बाद भी अगर कोई रूल्स ऑब्जर्व नहीं करते, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, तो उनको भी जुर्माना करना, उनका भी चालान कटवाना, ये काम भी RTO का होता है. तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है. RTO डिपार्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. जो भी बच्चे इन फ्यूचर में मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं और जिन्हें यूनिफॉर्म की क्रेज है या यूनिफॉर्म पे गर्व है, ये बच्चे आगे आके हमारे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं. तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कुछ इनकरेज है तो आप जरूर आइए. साथ ही साथ आप NCC ज्वाइन करते हो, आप एयरविंग ज्वाइन करते हो, RSP ज्वाइन करते हो, तो रोड सेफ्टी के लिए ये भी थोड़ा थोड़ा आप कंट्रीब्यूट कर सकते. आपने अगर RSP ज्वाइन किया है, NCC ज्वाइन किया है, तो इनडायरेक्टली ये स्कूल को भी बेनिफिट होगा, इनडायरेक्टली आपको भी एक डिसिप्लिन आ जाएगी कि रोड पे हम कैसे बर्ताव करना चाहिए. तो आप ये भी ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकते हैं, रोड की सेवा, रोड सेफ कर सकते हैं.
आज का जो विषय है ये विषय है रोड सेफ्टी के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे देश में या हमारे सिटी में, जैसे आप पुणे में रहते हो, तो पुणे में आपने देखा होगा कि हर एक घर में हर एक व्यक्ति के लिए एक टू व्हीलर है और हर फैमिली के लिए कम से कम एक कार है। तो हमने जैसे उसका गिनती किया तो व्हीकल पॉपुलेशन पुणे में, अगर पुणे सिटी की पॉपुलेशन 32 लाख है तो हमारे व्हीकल की पॉपुलेशन 36 लाख है। तो आदमी से ज्यादा व्हीकल हमारे यहाँ है। और ये व्हीकल जब हमारे रोड पे आते हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी दिक्कतें आप फेस करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा पोल्यूशन बढ़ रहा है, कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो आपने देखा होगा, आज ही देखिए नवंबर के महीने में जब सर्दी होती है, जहां ठंडी असते, उस समय हमारे यहाँ बारिश गिर रही है, उस समय हमें एसी लगाना पड़ रहा है, उस समय हमें फैन लगाना पड़ रहा है। ये किसकी वजह से? तो ये व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ रहा है। व्हीकल की वजह से जो गैसेस बाहर आ रही है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, जो भी इतने ग्रीन हाउस गैसेस है वो सब बाहर आ रहे। और उसके वजह से हमारा जो कई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके वजह से हम ये फेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए जो भी तैयारी करनी चाहिए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि व्हीकल के वजह से हम क्लाइमेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। व्हीकल 16% क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसीलिए बच्चे लोग, स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने काफी एजिटेशन स्टार्ट कर दिए। आपने नाम सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग का, जिसने स्वीडन में स्कूल स्ट्राइक, यानी एवरी फ्राइडे वो स्कूल बाइकआउट करते थे और लोगों को ये नॉलेज देते थे कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल पे हमने अगर काम नहीं किया तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो पीढ़ी के लिए काफी दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्हीकल का अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो उससे फ्यूचर में हमारा जो भी है सर्टेनिटी वो नहीं रहेगी। हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये जो होली मदर है हमारी, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी हमें प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमने व्हीकल का कम से कम यूज करना चाहिए, ये हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी के लिए। रोड सेफ्टी क्यों हम एजुकेट कर रहे हैं, क्यों हम आपको सिखा रहे हैं? हम चाहते हैं कि आप, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके टीचर्स, आपके आसपास के लोग भी, सभी लोग सेफ रहे, सुखी रहे, और इसके वजह से हम भी घर में आनंद ले सके। तो इसीलिए हम रोड सेफ्टी एजुकेशन हमने आज का सेशन चुना है। और इसी के लिए मैं स्कूल की जितने भी प्रिंसिपल है, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, इनका सबका आभारी हूँ। अब देखिए आपके स्क्रीन पे हमने दिखाया एक ट्रैक्टर है, ये पहला ट्रैक्टर था। इसके बाद आप देख रहे हो कि कितने ट्रैक्टर टाइप के ट्रैक्टर या कितने टाइप के व्हीलर, टू व्हीलर्स, कार सब रोड पे आ रहे हैं। और ऐसे सभी गाड़ियां हमारे महाराष्ट्र में, हमारे पुणे में आपके पास भी होगी। अभी रोड सेफ्टी के लिए हम चाहते हैं कि आपको एनकरेज करना चाहिए, सबको हमने प्रोत्साहन देना चाहिए। और इसी के लिए हमने टीचर्स को ट्रेन किया है, हमने पेरेंट्स को बता दिया है, हमने वॉलंटियर्स तैयार किए हैं। तो ये सभी के साथ हम ऐसी ये करेंगे की रोड सेफ हो जाएगे, रस्ता सुरक्षित झाला पाहिजे, प्रत्येकाने वाहतुकीचे नियम पाळले पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला सुरक्षित रस्त्यावरती वाटलं पाहिजे, विश्वास वाटला पाहिजे, आपण एकटं घराच्या बाहेर पडणं शक्य झालं पाहिजे। आणि ह्यासाठीच आपण आता रोड सेफ्टी शिकत आहोत। रोड सेफ्टीला प्रायोरिटी का द्यायची, तर तुम्ही बघितलं असेल की रस्त्यावरती व्हीकल वाढल्यामुळे, जैसे व्हीकल पॉप्युलेशन बढ़ रहा है, इसके वजह से वी आर फेसिंग 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स। आपल्याला रस्त्यावरती 4 प्रकारचे प्रॉब्लेम्स दिसतात। पहिल्यांदा आहे की ट्रॅफिक कंजेशन, सगळीकडे तुमच्या शाळेच्या आसपास मंडे टू फ्रायडे ट्रॅफिक जाम असतं, तुम्हाला शाळेत यायला त्रास होतो, गाड्यांच्या मधून अधून रस्त्यात मार्ग काढावा लागतो। हे कंजेशन जे आहे हे वाहनांमुळे होत आहे। पोल्यूशन वाढतंय, पोल्यूशनमुळे आपल्याला किती प्रॉब्लेम्स क्रिएट होत आहेत, कंटिन्यू पोल्यूशनमुळे किती प्रॉब्लेम्स होत आहेत तुम्ही बघितलं असेल की रेस्पिरेटरीचे प्रॉब्लेम्स आहेत, दम्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत, बाकीचे मेडिकलचे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे सगळे प्रॉब्लेम्स आपण फेस करत आहोत। त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं असेल की हे पोल्यूशन झालं, त्याच्यानंतर कंजेशन झालं, नंतर क्राईम झालेला आहे। तर रस्त्यावरती खूप क्राईम झालेले आहेत, किंवा जेवढे क्राईम होतात
त्या प्रत्येक क्राईम मध्ये तुम्ही बघितलं असेल की व्हेकल इन्व्हॉल्व्ह होत असतं आणि गुन्हे जे घडत असतात, घराच्या चोऱ्या होतात, मर्डर होतात, पिक पॉकेटिंग होतो, मोबाईल स्नॅचिंग होतं, चेन स्नॅचिंग होतं, या प्रत्येक इन्सिडेंटमध्ये व्हेकल वापरलं जातं आणि हे ट्रेस करणं खूप कठीण होत चाललेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं, हे सगळं करत असताना मेन जो प्रॉब्लेम आपण फेस करत असतो आणि तो आहे ऍक्सिडेंट. ऍक्सिडेंट मग तो मायनर असेल, ऍक्सिडेंट तो मेजर असेल, परंतु ऍक्सिडेंट होत असतात. आणि हे सगळं चारही गोष्टी जर कमी करायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये आपण जे काही ई जो आहे त्या एज्युकेशन वरती भर दिला पाहिजे. आपण 4-5 ई वरती काम करत असतो, आरटीओ 4-5 ई वरती काम करतं. त्याच्यामध्ये तुमच्यासाठी पहिल्यांदा माहिती पाहिजे की इट इज इज इंजिनिअरिंग, म्हणजे व्हेकल इंजिनिअरिंग आहे, व्हेकल रोड इंजिनिअरिंग आहे, याच्यावरती खूप चांगलं काम होतं. तुम्ही बघितलं असेल की तुमच्याकडे जी कार है, आपके पास जो भी कार है वो कार कैसी है, तो 2 टाइप की कार आ चुकी है, एक है क्रैशलेस कार और एक है ड्राइवरलेस कार. तो हमारा जो व्हेकल है, तो वो हमारा जो व्हेकल है, काय झालं, इट्स ओके. तर त्याला तुम्ही बघितलं असेल की उसमें एयर बैग्स है, उसमें सीट बेल्ट है, उसमें और सारी काफी चीजें हैं कि जिस वजह से ओके, जिस वजह से हम एक्सीडेंट टाल सकते हैं या कम कर सकते हैं. तो रोड इंजीनियर, व्हीकल इंजीनियरिंग में ये काम हो रहा है. रोड इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा कि कितने अच्छे रास्ते बन रहे हैं. आपने कभी कल परसों टीवी पे देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर एक रोड के इनॉग्रेशन में आए थे, तो उनका जो एरोप्लेन था वो रोड के ऊपर ही लैंड हुआ था. यानी हम रोड का यूज एअर स्ट्रिप करके कर सकते, यानी रस्त्यावरती आपण विमान उतरवू शकतो. इतक्या चांगल्या ऍडव्हान्स इंजिनिअरिंगचे रस्ते आपल्याकडे आज झालेले आहेत. तर ह्या ई वरती आपण काम करत असतो. त्याच्यानंतर एन्फोर्समेंट काम करत असतो, म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी करत असतो. तर ही एक ई आहे. त्याच्यानंतर एनकरेजमेंट करत असतो आम्ही तुमच्यासारख्या मुलांना, टीचर्सला, स्टाफला, आरएसपीच्या मुलांना, सगळ्यांना एनकरेज करतो की तुम्ही रोड सेफ्टी, वाहतुकीचे नियम, ह्या सगळ्या गोष्टी सांगा, जेणेकरून लोक रस्त्यावरती त्या फॉलो करतील, ऑब्झर्व करतील. इन्करेजमेंट आहे. त्याच्यानंतर एन्फोर्समेंट आहे. त्याच्यानंतर इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस आहे. म्हणजे हे सगळं केलं. रोड चांगले आहेत, व्हेकल चांगले आहेत, गाडी चालवणारे चांगले आहेत, परंतु जर ऍक्सिडेंट झाले तर त्या केसमध्ये लगेच इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस म्हणजे अँब्युलन्स येईल आणि तुम्हाला लगेच इलाज केला जाईल. तर अशा प्रकारचं EMS देखील काम करत असतं. तर ह्या सगळ्या ई वरती काम करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच त्याच्यामधला पहिला जो ई आहे तो आहे एज्युकेशन, आणि त्यासाठी आपण इथं आलेलो आहे. ऍक्सिडेंट बद्दल मी काय जास्त बोलणार नाही, परंतु पुण्यामध्ये रोज एक तरी माणूस घराच्या बाहेर पडलेला संध्याकाळी घरी जात नाही. वेदर तो मोटरसायकलिस्ट असेल, तो पेडेस्ट्रियन असेल किंवा तो सायकलिस्ट असेल. परंतु लक्षात ठेवायचं की सगळ्यात वनरेबल म्हणजे सगळ्यात अनसेफ कोण जर असेल तर इट इज अ पेडेस्ट्रियन, इट इज अ सायकलिस्ट और इट इज अ मोटरसायकलिस्ट. आणि ह्यासाठीच आपण ह्या गोष्टी, थोड्या गोष्टी माहिती करून दिल्या पाहिजेत, केल्या पाहिजेत. आणि आपल्या आई वडिलांना, आपल्या ताईला, आपल्या दादाला सांगितलं पाहिजे की तू वाहतुकीचे जे नियम आहेत ते नियम पाळले पाहिजेत, जेणेकरून तू सेफ म्हणजे घर सेफ असणार आहे. आता रोड म्हणजे काय, जस्ट या प्रेझेंट स्लाइड मध्ये चेक करा. बघा, तुमच्या राईट साइडला रोड दिसतोय. रोड म्हणजे काय आहे, तर ज्याच्यावरून व्हेकल जातं, ज्याच्यावरून टू व्हीलर जाईल, ज्याच्यावरून कार जाईल, ज्याच्यावरून हातगाडी जाईल, ज्याच्यावरून बैलगाडी जाईल, दॅट इज कॉल्ड ॲज रोड ऑर कॅरेज वे. आणि त्याला लागून जी लिफ्ट केलेल्या फुटपाथ दिसते, तर ती येलो जे दिसते बघा, एक ब्रिक दिसते किंवा वीट दिसते, दॅट इज कॉल्ड ॲज कर. आणि त्याला लागून असते ती फुटपाथ. तो असा हा रस्ता आपल्यासाठी केलेला असतो. आता ह्या रस्त्यावरती तुम्ही जाता, प्रत्येकाला, लहान असो मोठा असो, कोई भी हो घर में, अगर छोटा बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक, एवरीबडी हैज टू वॉक. हमें स्कूल जाना है, हमें गार्डन जाना है, हमें भगवान के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, तो हमको पैदल जाना ही होता है. या एवरी ट्रिप इट विल स्टार्ट फ्रॉम बाय वॉक एंड इट विल एंड बाय वॉक. तो ये इसके लिए हमें कैसे रोड पे चलना चाहिए, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए. आपल्याला ही माहिती पाहिजे की रस्त्यावरती आपण कसं चाललं पाहिजे, कुठं चाललं पाहिजे. तर लक्षात ठेवायचं की रस्त्यावरती तुम्ही चालण्यासाठी जे काही गोष्टी आहेत त्या 2-3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. की पहिल्यांदा रस्त्यावरती तुम्ही जेव्हा जाता तर फुटपाथ असेल तर आपण फुटपाथ वरतीच चाललं पाहिजे. आणि फुटपाथ जर नसेल तर मी खूप वेळा मुलांना विचारतो की कुठल्या साईडने चालणार, तर मुलं सांगतात की आपण डाव्या बाजूनी चाललं पाहिजे. तर ती गोष्ट चुकीची आहे. ज्या ठिकाणी फुटपाथ नाही
त्या ठिकाणी आपण रस्त्याच्या उजव्या बाजूने चाललं पाहिजे. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की कुठली बाजू असेल तर आपली राईट साईड आहे. का ते येणारं जे व्हेकल आहे ते व्हेकल आपल्याला दिसलं पाहिजे. जर त्याचा स्पीड जास्त असेल, त्याचं स्टेअरिंग कंट्रोल गेला असेल तर त्या केसमध्ये आपल्या समोरून जर वाहन येत असेल तर आपल्याला बचाव करता येतो, कारण आपली नजर त्याच्यावरती असते. म्हणून आपण नेहमी राईट साईडनी चाललं पाहिजे. आता रस्ता कुठं क्रॉस करायचा, तर मुलांना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की शक्यतो रस्ता हा झेब्रा क्रॉसिंग वरूनच क्रॉस केला पाहिजे. झेब्रा क्रॉसिंग कुठं असतं तर तुम्ही बघा, जिथं रस्ता सरळ असेल त्या ठिकाणीच शक्यतो झेब्रा क्रॉसिंग देतात. ज्या ठिकाणी दोन्ही विजन्स असतात, जिस साइड से हमें दोनों साइड ये देख सकते, दोन्हीकडे आपल्याला बघता येतं, रस्ता दोन्हीकडचा दिसतो, त्या ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग असतं. तर रस्ता हा झेब्रा क्रॉसिंग वरतीच क्रॉस केला पाहिजे. आता झेब्रा क्रॉसिंग असतं त्याच्या शेजारी तुम्ही बघितलं असेल की हे पाहिजे, मी कर्सर फिरवते, तिथे एक कंटिन्युअस व्हाईट लाईन आहे. देयर इज अ वन कंटिन्युअस व्हाईट लाईन, दॅट लाईन इज कॉल्ड एज स्टॉप लाईन. म्हणजे जी अखंड रेषा आहे त्या अखंड रेषेला आपण म्हणतो स्टॉप लाईन. आणि प्रत्येक व्हेकल जो कोणी चालवणार असेल त्यांनी जेव्हा रस्त्यावरती पेडेस्ट्रियन झेब्रा क्रॉसिंग वरती जर माणूस असेल, मुलगा असेल, लहान असेल, अपंग असेल, वृद्ध असेल, अंध असेल, अशी लोक दिसले तर आपण पहिले त्यांना प्रायोरिटी दिली पाहिजे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा की जगामध्ये पहिल्यांदा वाहन माणूस आलाय आणि नंतर वाहन आलंय. म्हणजे आपल्यासाठी वाहन आहे, वाहनासाठी आपण नाही, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. म्हणून पेडेस्ट्रियन फर्स्ट हा सगळ्यात महत्वाचा आहे की रस्त्यावरती फुल रिस्पेक्ट दिला पाहिजे पेडेस्ट्रियनला. आणि जेव्हा जेव्हा झेब्रा क्रॉसिंग दिसेल, स्टॉप लाईन दिसेल, तर आपण झेब्रा क्रॉसिंगच्या इथं जी स्टॉप लाईन आहे त्या स्टॉप लाईनच्या अलीकडेच आपण थांबलं पाहिजे. मग सिग्नल असेल तर सिग्नलला देखील आपण त्या स्टॉप लाईनच्या अलीकडेच थांबलं पाहिजे. तुम्ही बघितलं असेल सिग्नलला आपल्या पुण्यामध्ये वरती कॅमेरे बसवलेत. कॅमेरे काय बसवलेत तर तुमच्यावरती कंट्रोल आहे, व्हेकल जे चालवतात त्यांच्यावरती कंट्रोल असतो. आणि त्याच्यामध्ये जे कोणी स्टॉप लाईन क्रॉस केली असेल तर त्याला इमिजिएट चलान होतं. तुमच्या घरी तुमच्या आई वडिलांना किंवा भावाला असं चलन आलं असेल तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा की तुमच्यावरती इनव्हिजिबली, म्हणजे दिसत नाही तुम्हाला, परंतु तुमच्यावरती कुठे ना कुठे कंट्रोल आलेला आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही वाहतुकीचे नियम पाळलेच पाहिजे. तर ही स्टॉप लाईन आहे, या स्टॉप लाईनच्या अलीकडेच आपण गाडी थांबवली पाहिजे किंवा आपण उभं राहिलं पाहिजे. आता तुमचं बिहेवियर बघा कसं असतं. जस्ट सी ऑन द स्क्रीन पे देखिए आप कैसे आप बर्ताव करते हो रोड पे, जस्ट सी हाउ यू बिहेव ऑन द रोड. तर हे असं करायचं नाहीये आणि त्याच्यासाठीच आपण अजून पुढे जाऊया. रस्त्यावरती आपण जंप केलं नाही पाहिजे, डिवायडरवरती क्रॉस नाही केला पाहिजे, गाडीच्या बाहेरून हात नाही काढला पाहिजे. ह्या सगळ्या काही गोष्टी आहेत, ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजे. रस्ता क्रॉस करताना पहिल्यांदा राईटला बघा, नेक्स्ट लेफ्टला बघा, परत राईटला बघा आणि मग रस्ता क्रॉस करायचा आहे. रस्ता पळत क्रॉस करायचा नाही. रस्ता क्रॉस करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की जेव्हा भीती वाटते तेव्हा जागेवरतीच उभं राहायचंय. आणि आम्ही नेहमी सांगतो की आपला हात असा वर करा, जेणेकरून बस ड्रायव्हर, ट्रक ड्रायव्हरला कळतं की इथं हा मुलगा थांबलेला आहे. तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. बसमधून उतरल्या रस्ता क्रॉस करायचा नाही किंवा पार्क केलेल्या गाड्यांच्या मागून रस्ता क्रॉस करायचा नाही. वळणावरती रस्ता क्रॉस करायचा नाही. अंधारामध्ये रस्ता क्रॉस करायचा नाही. रात्रीच्या वेळेला जिथं स्ट्रीट लाईट आहे त्या स्ट्रीट लाईटच्या खालीच आपण रस्ता क्रॉस केला पाहिजे, जेणेकरून तुम्हालाही रस्ता दिसेल, लोकांनाही तुम्ही कळताल की हा मुलगा तिथं उभा आहे. तर ह्या छोटी गोष्ट आहे परंतु खूप महत्वाची आहे आणि ह्या गोष्टी आपण फॉलो केल्या पाहिजेत. आता नेक्स्ट आहे, आपण स्कूलला काही जण मुलं बसने येतात का? आपली स्कूल बस आहे का? स्कूल बस आहे. तर स्कूल बसचा कलर कुठला आहे तर येलो कलर आहे. का येलो कलर दिलेला आहे तर हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की येलो कलर हा सगळीकडून दिसायला लगेच नजरेत येतो, व्हिज्युअल होतो आणि म्हणून आपण स्कूल बसला येलो कलर दिलेला आहे. आता ह्याचे काही रूल्स आहेत, तुम्हाला माहिती असतील की ही जी स्कूल बस आहे या स्कूल बसला इमर्जन्सी डोअर दिलेला आहे. म्हणजे इन केस ऑफ एनी इमर्जन्सी यू कैन एग्जिट फ्रॉम दैट डोर. तुम्ही ओपन करू शकता डोर आणि त्याच्यातून बाहेर येऊ शकता. अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आप वो दरवाजा खोल सकते हैं और वहां से आप बाहर आ सकते हैं. ये स्कूल बस में फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है. साथ ही साथ आपने देखा होगा अगर गर्ल स्टूडेंट्स है तो इस बस में लेडी अटेंडेंट भी कंपलसरी है. और ऐसे बस में स्पीड लिमिट भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. उसका स्पीड लिमिट होता है 50. और जो भी ड्राइवर होता है उस ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है कि यह सिंसियर आदमी है, इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है,
तो उसका कैरेक्टर भी अच्छा है, तो ऐसे ही लोगों को हम ड्राइवर बोल के अपॉइंट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और उनका स्कूल अथॉरिटी ने भी मेडिकल चेकअप किया या नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल बस में बच्चे होते हैं उनका स्कूल लिस्ट भी होना चाहिए, एक स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट के पास और एक वो जो ड्राइवर होगा उसके पास। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि स्कूल बस सबसे सेफ होता है और उससे ही हम जाना चाहिए। अगर पैदल नहीं जाते हैं, साइकिल पे नहीं जाते, तो हम स्कूल बस से ही स्कूल जाएंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्कूल बस में हम कैसे बैठना चाहिए, आपण स्कूलमध्ये मुलांनी कसं बसलं पाहिजे, तर लक्षात ठेवा त्या स्कूल बसमध्ये उंचीप्रमाणे आपली जशी उंची असते त्याप्रमाणे आपण बसलं पाहिजे। जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो पीछे बैठेगा। और आपने देखा होगा कि स्कूल बस में एक मिरर होता है, इनसाइड द व्हीकल देयर इज अ वन मिरर, दैट इज पैराबोलिक मिरर। उसका शेप पैराबोलिक क्यों दिया है, तो ड्राइवर कैन विजुअलाइज, ड्राइवर कैन सी दैट ऑल स्टूडेंट्स हाउ दे आर बिहेविंग इन द बस। साथ ही साथ स्कूल बस में हम जैसे इनसाइड अंदर बैठेंगे तो उस समय हमने एक लाइन में एका लाइन मध्ये आपण स्कूल बस मध्ये चढलं पाहिजे और चढता चढता आपले कपडे फाटणार नाही, आपली बॅग अडकणार नाही, याची पण आपण काळजी घेतली पाहिजे। साथ ही साथ स्कूल बस मध्ये आपण जोर जोरात ओरडायचं पण नाही, हातपाय देखील बाहेर काढायचे नाही, ही गोष्ट पण आपण लक्षात ठेवली पाहिजे। कारण की मी एक ऍक्सिडेंट बघितलाय की मोबाईलला रेंज येत नव्हती म्हणून मुलांनी स्कूल बसच्या बाहेर हात काढला होता मोबाईल सकट, आणि तो हात म्हणजे खूप ट्रॅजिक हे होता तो, आणि त्याच्यामध्ये खूप मोठा ऍक्सिडेंट झाला, आणि हे पण आपण टाळलं पाहिजे। आणि म्हणूनच स्कूल बसला आपण बाहेर साईडला 3 रॉड दिलेले आहेत। ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर स्कूल बस तुम्ही फॉलो करा, स्कूल बसनीच या, हे मी तुम्हाला मुलांच्या पालकांनाही सांगेन, पेरेंट्स को भी मैं बता रहा हूँ, बच्चों को भी बता रहा हूँ, स्कूल अथॉरिटी को भी बता रहा हूँ, ट्राई टू मेक कंपल्सरी टू ऑल स्टूडेंट्स टू कम बाय स्कूल बस, either pedestrian, by walk or by cycle or by school bus। ठीक है। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चे लोग हैं तो उन्होंने अननोन लोगों के साथ ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि बस स्टॉप के बाहर बच्चे खड़े होते हैं और अननोन लोगों को बोलते कि हमें लिफ्ट दो, विच इज वेरी रॉन्ग। इसमें काफी इंसिडेंट हमने देखे हैं, सुने हैं और इन्वेस्टिगेट भी किए हैं। तो ये भी हमने नहीं करना चाहिए कि अननोन लोगों के साथ कोई ट्रैवलिंग नहीं करेगा, या किसी ने कुछ भी दिया, गिफ्ट भी दिया या कुछ भी दिया, तो हम अननोन लोगों के साथ या के पास से कुछ लेंगे भी नहीं और कुछ देंगे भी नहीं। ये भी हमने एज ए स्कूल अथॉरिटी देखना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। तो स्कूल बस के बाद हम आगे चलते हैं। साइकिलिस्ट, हम साइकिल चलाते हैं, सायकल जी आहे ती बेसिकली इट इज अ व्हेकल, प्रायमरी व्हेकल आहे, आणि सायकलचा उपयोग केलाच पाहिजे। सायकल ही एकाच माणसासाठी आहे, सायकल इज ओनली फॉर 1 पर्सन, दॅट इज हु इज रायडिंग ऑन दॅट, अँड नॉट फॉर 2 पर्सन। सायकल ही एकाच माणसासाठी, एकाच मुलासाठी आहे, मित्रमैत्रिणींसाठी नाही। आणि सायकलच्या मागे जे कॅरियर असतं त्या कॅरियरचा उपयोग तुमची जी स्कूल बॅग आहे ती स्कूल बॅग ठेवण्यासाठीच केला जातो। सायकल थांबवताना जनरली स्टुडंट्स एकच गिअरचा वापर, एकाच ब्रेकचा वापर करतात, परंतु मुलांनाही सांगितलं पाहिजे की दोन्ही ब्रेकचा आपण वापर केला पाहिजे। सायकलला आपण हेड पुढे दिवे पण दिलेले आहेत, आता खूप छान सायकली आलेल्या आहेत, इतक्या छान सायकली आलेल्या आहेत की त्याला गिअर्स आहेत, त्याला थोडी मोटर पण सपोर्ट केलेली असते। अशा सायकलीचा उपयोग करा ज्याला मागे रेडियमच्या पट्ट्या लावलेल्या असतात, छान छान LED बल्ब दिलेले आहेत, आणि ही सायकल चालवताना मुलांनी हेल्मेट देखील आता दिलेले आहेत। सायकलसाठी हेल्मेट असतं, त्या हेल्मेटचा देखील वापर करायला हरकत नाही। आणि सायकलीमुळे सगळ्यात महत्वाचं की आपल्याला एनर्जी सेव्ह होती आणि एक्सरसाइज देखील होतं, म्हणजे त्याच्यामुळे आपल्याला ग्राउंडवरती जास्त राऊंड मारायची गरज पडत नाही। तर अशी ही सायकल वापरा। सायकल वापरताना अक्सर आम्ही बघितलेलं असतं की ग्रामीण भागात असो, सिटी एरियामध्ये असो, पिक्चर बघा तुम्ही, मुलं त्या चेनला धरतात, ट्रकला जी काही चेन असते त्या चेनला असं कॅच करतात, होल्ड करतात आणि मग गाडी चालवतात। पण हे लक्षात ठेवायचं की पुढची ट्रक जर ऑल ऑफ सडन थांबली तर आपण काय, आपलं काय होणार, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या होगा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा किसी का भी हमने सपोर्ट लेना नहीं चाहिए। साथ ही साथ अगर बस है या ट्रक है या बड़ी कार है, कोई भी व्हीकल हो, तो हमने देखना चाहिए, हम अगर साइकिल पे है तो हम उसमें से सेफ डिस्टेंस रखेंगे, साइकिल हमारी लेफ्ट साइड से ही चलेगी।
तर हे पण लक्षात ठेवा की सायकल ही नेहमी रस्त्याच्या डाव्या बाजूनीच गेली पाहिजे. पायी चालताना उजवी बाजू आहे मान्य आहे, परंतु सायकल ही नेहमी डाव्या बाजूनीच आपण गेली पाहिजे. आपल्या आसपास कुठलंही मोठं व्हेकल असता कामा नये. स्पेशली बसेस, तुमचा एरिया बसेसचा एरिया जास्त आहे किंवा ट्रक आहे, तर आम्ही ऍक्सिडेंट बघताना नेहमी बघतो की ट्रकच्या बसच्या रिअर साईडला लेफ्ट साईडला सायकलिस्ट येतात का, तर त्या बसच्या ऑपरेटर बसच्या ड्रायव्हरला दिसत नाही. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की सायकल चालवताना काळजी घ्या, बसच्या ट्रकच्या जवळपास देखील येता कामा नये. वळताना सायकल चालवताना अगर आपल्याला जर टर्न घ्यायचे असतील, राईट टर्न लेफ्ट टर्न, तर आपण हात दाखवणं गरजेचं आहे. जसं मोटरसायकल हात दाखवतात किंवा इंडिकेटर देतात, तसंच सायकल चालवताना वळताना आपण हात दाखवणं गरजेचं आहे. पावसाळ्यामध्ये छत्री घेऊन सायकल चालवायची नाही, तर रेनकोट घालूनच आपण सायकल चालवली पाहिजे. हे पण आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. ठीक आहे, तर आपण सायकलच्या आपण थोडं पुढे जाऊया. हा, इंटरसेक्शन. व्हॉट इज अन इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन तुम्ही बघा, व्हेरी सिंपल डिफाइन केलेलं आहे. जिथं दोन रस्ते, जहां पे दो रोड मिलते हैं, उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं. इट मे बी इन डिफरंट शेप. इट विल बी लाइक, यू मे कॉल इट एज जंक्शन ऑल्सो. फोर्क टाइप असेल, कुठल्याही टाइप्स असेल, वाय असेल, एक्स असेल, तर इट इज अन इंटरसेक्शन. सिग्नल्स, सिग्नल्स क्यों होते हैं? अगर सिग्नल्स नहीं है इंटरसेक्शन में तो क्या होगा? तो इंटरसेक्शन में सिग्नल्स नहीं है तो वहां पे काफी कॉन्फ्लिक्ट हो गए, वहां पे काफी एक्सीडेंट हो गए, वहां पे कोई कुछ भी हो सकता है. तो ये हमको अवॉइड करने के लिए हमने सिग्नल्स दिए हैं. तो सिग्नल्स पहले जो इस दुनिया में सिग्नल स्टार्ट हुए तो उस टाइम दो ही कलर थे, एक था रेड और एक था ग्रीन. तो जस्ट इमेजिन इफ सपोज देर आर ओनली टू कलर्स इन अ सिग्नल, रेड एंड ग्रीन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द सिचुएशन? तो उस केस में हमने देखा होगा कि अगर दो ही कलर है तो इंटरसेक्शन में एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा थे, व्हीकल कोलिजन के चांसेस ज्यादा थे. इसीलिए 1918 में लंदन में थर्ड कलर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज एम्बर कलर. तो इसीलिए सिग्नल में तीन कलर्स ऐड किए गए हैं, तीन है. पहला है रेड, रेड मीन्स स्टॉप. रेड के बाद कौन सा कलर आएगा? तो ग्रीन आता है. ग्रीन का मतलब होता है यू कैन गो, बट व्हेन इफ देयर इज अ सफिशिएंट स्पेस देन ओनली यू कैन मूव, अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप. तो ग्रीन का मतलब होता है गो, कॉशियसली गो. और उसके बाद में एम्बर कलर आएगा. तो एम्बर कलर का मतलब होता है इफ सपोज यू हैव क्रॉस द स्टॉप लाइन, द लाइन बिफोर जेब्रा क्रॉसिंग, अगर वो हमने क्रॉस की है देन ओनली यू कैन मूव, अदरवाइज द मीनिंग ऑफ एम्बर कलर इज यू हैव टू स्टॉप. येलो कलर का, पिवळ्या रंगाचा अर्थ असा आहे की तुम्ही हे थांबलंच पाहिजे. फक्त तुम्ही झेब्रा स्टॉप लाईन क्रॉस केली असेल देन ओनली यू कॅन मूव. तर लक्षात ठेवायचं की आपल्या आई वडिलांना ही गोष्ट सांगा की रेड का मतलब थांबा, हिरव्याचा मतलब एक कॉशियसली पुढे जा, आणि पिवळ्याचा मतलब आहे थांबाच. हे सगळं माहिती असलं पाहिजे. आता सिग्नल दोन प्रकारचे, सी ऑन द स्क्रीन, वन इज व्हीकुलर सिग्नल एंड द अदर वन इज पेडेस्ट्रियन सिग्नल. पेडेस्ट्रियन सिग्नल आपने देखा होगा कि ग्रीन होता है और रेड होता है, राइट? अगर फ्लैशिंग रेड है इसका मतलब है अगर आप रोड पे है तो रोड पे फुटपाथ पे तो वहीं पे रुक जाइए. अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप हरी यानी जल्दी करके रोड क्रॉस करना चाहिए. तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि फ्लैशिंग रेड फ्लैशिंग ग्रीन का मतलब क्या होता है. साथ ही साथ आपने देखा होगा सिग्नल के ऊपर टाइमर होता है. तो टाइमर किसके लिए है, किस चीज के लिए? तो टाइमर का यूज होता है कि जैसे 30 के सेकंड के आगे अगर हमको रुकना है तो उस केस में हमको हमारा गाड़ी का इंजन ऑफ करना ही चाहिए. क्यों करना चाहिए? तो आपने देखा होगा अगर इंटरसेक्शन में, चौक में अगर हम रुक जाए तो देखा होगा कि अगर सभी गाड़ियां चालू है, सबका इंजन चालू है, तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां का पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, और उसका तकलीफ, उसका परेशानी वहां पे जो पुलिस होता है उसको होता है. तो इसी के लिए हमने हमारा गाड़ी का इंजन ऑफ करना चाहिए. वी मस्ट ऑफ दैट इंजन. साथ ही साथ ये सब करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सिग्नल के पास हमारा स्पीड कम ही होना चाहिए. जो भी पेरेंट्स है उनको बता दी कि सिग्नल के लिए हमारा स्पीड कम होना चाहिए, और जिस लेन में हमें जाना है उसी लेन में हमने गाड़ी रुकवाना चाहिए. अगर हमें राइट साइड जाना है तो हम राइट साइड में ही रहेंगे. हमको अगर सीधा जाना है तो
बस बीच में रहेंगे और हमें अगर लेफ्ट जाना है तो हमें लेफ्ट साइड ही लेना होगा। साथ ही साथ हमारी गाड़ी को मिरर दिया जाता है, तो मिरर का यूज लेकिन हम करना चाहिए। मिरर जो होता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर नियरर देन दे अपीयर, तो जो भी दिखता है उससे गाड़ी हमारी पीछे वाली जो गाड़ी है पास में होती है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड मिरर इज अ थर्ड आय ऑफ द ड्रायव्हर, मिररला आम्ही म्हणतो की ड्रायव्हरचा तिसरा डोळा आहे। तर हा पण लक्षात ठेवा की शंकराला 3 डोळे होते, तिसरा डोळा उघडला तर प्रलय व्हायचा असं म्हणतात, परंतु ड्रायव्हरचा जो तिसरा डोळा आहे आरसा, त्याच्यात जर तुम्ही बघितलं नाही तर प्रलय होणार आहे, म्हणजे थोडक्यात ऍक्सिडेंट होणार आहे। तर मिररचा उपयोग आपण केला पाहिजे आणि MSM मिरर सिग्नल मनोवर MSM प्रिन्सिपलचा उपयोग आपण केला पाहिजे, सायकल चालवताना पण, मोटरसायकल चालवता पण आणि कार चालवताना पण। तर पेरेंट्सला आपण ही गोष्ट पण सांगणं गरजेचं आहे। तर सिग्नल झालेला आहे, तर सिग्नल नंतर आपण थोडं पुढे जाऊया। जस्ट एक ग्लांस कर दो, देखो हमने जो लिखा है ग्रीन का मतलब क्या है और रेड का मतलब क्या है, तो हम थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ, जहां पे पेडेस्ट्रियन के सिग्नल नहीं है तो वहां पे हम देखेंगे ट्रैफिक बंद हो जाए, रेड सिग्नल लगेगा, फिर हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी आपको ने देखा होगा कि आपको रोड पे आपके रोड सेफ्टी के लिए कौन कौन मदद करता है, तो पुलिस होती है, सिग्नल होता है, और साथ साथ अभी आप देख रहे हो कि आपके स्क्रीन पे देखिए कि ये ट्रैफिक साइन होते हैं जो कि 3 डिफरेंट शेप में है। जो सर्कुलर है उसे कहा जाता है मैंडेटरी, इसका मतलब है सख्ती से, यानी आपको ये करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो आपका चालान कटेगा और आपको ई चालान इमीडिएटली आपके मोबाइल पे आ जाएगा कि आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया है, आपने नो एंट्री में गाड़ी बुक की है। तो ये जो भी है दैट इज कॉल्ड एज मैंडेटरी साइन, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। इसका शेप है सर्कुलर, रेड मीन्स यू शुड नॉट डू, यू शुड अवॉइड। साथ ही साथ बीच में वाला जो है दैट इज ट्रायंगुलर साइन, दैट इज कॉल्ड एज कॉशनरी साइन, दैट मीन्स द रोड कंडीशन अहेड you have to act accordingly. If suppose road is narrow, there is a ghat area, there is a school, so you have to change your driving behavior. So for that you are informed with this sign. This sign is called as cautionary sign. ह्याला म्हणतात सावधान करणारी चिन्ह। पुढे शाळा आहे, काय केलं पाहिजे माझ्यासारख्यांनी किंवा पालकांनी, तर आपण गाडीचा स्पीड कमी केला पाहिजे, हॉर्न वाजवायचा नाही, मुलं इकडे तिकडे फिरत असतात, म्हणून हे पण आपण बघितलं पाहिजे की कॉशनरी साइन असतील तर तिथं आपण काळजी घेतली पाहिजे। आणि जेव्हा तुम्ही ट्रिपला जाता, जेव्हा हम ट्रिप चले जाते, महाबलेश्वर जाते हो, माथेरान जाते हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी डिमांड होती है कि हमें कैंटीन चाहिए, कहाँ खाना है, कहाँ क्या मिलेगा, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो भी है वो रोड के ऊपर इंफॉर्मेटरी साइन के साथ आपको दिए जाते हैं। दिस साइंस आर कॉल्ड एज इंफॉर्मेटरी, और उसका शेप देखिए, इट विल बी रेक्टेंगुलर वॉट एवर, स्क्वायर वॉट एवर। तो ये जो 3 साइन है, ये साइन हर जगह आपको मिलेंगे। साथ ही साथ पूरे दुनिया में ये साइन एक ही तरीके से होते और इसका मीनिंग भी पूरे दुनिया में एक ही होता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। भारत में जो इसका मीनिंग है वही मीनिंग यूएस में होगा, वही मीनिंग ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट देख लीजिए ये जो ट्रैफिक साइन है, ये साइन कैसे होते हैं, उसमें से देखिए नो हॉर्न, जो सिटी में हम ज्यादा यूज करते हैं वो है नो एंट्री, जो नो हॉर्न, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। स्पीड लिमिट 50, नो पार्किंग, ये कॉमन साइंस है, ये हमको मालूम होना चाहिए। अगर ये वायोलेशन हो गया तो आपका चालान कटने वाला ही है। साथ ही साथ नीचे देखिए ब्लू कलर की जो साइन है, दीज ऑल साइंस आर आल्सो मैंडेटरी साइन, और ये जो साइन होते हैं ये कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी राइट टर्न, कंपलसरी लेफ्ट टर्न, कंपलसरी ब्लो हॉर्न। ब्लो हॉर्न कहाँ पे आएगा, हम स्कूल के सामने हॉर्न नहीं बजाएंगे, लेकिन अगर शार्प टर्न है तो वहां पे हमको हॉर्न ब्लो करना ही चाहिए, बजाना ही चाहिए, क्योंकि आगे वाले को इन्फॉर्म करना चाहिए, इसीलिए ये साइन कंपलसरी है। जस्ट उसके आगे हम देखते हैं स्कूल प्रीमाइसेस में हम इसका बोर्ड भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉशनरी साइन देखिए, ये साइन ऐसे होते हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्कूल अहेड, पेडेस्ट्रियन, जेब्रा क्रॉसिंग, ये जो साइन है, ये साइन हमको मालूम होने चाहिए। व्हेन दिस साइन इज देयर, नो हॉर्न एंड यू हैव टू ड्राइव कॉशियसली। ये जो साइन है, ये साइन है गैप इन बिटवीन, दैट मींस यू कैन टेक यू टर्न फ्रॉम दिस साइड, ये हमको साइन इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। दिस इज अ साइकिल ट्रैक,
दिस इज नैरो ब्रिज, कैटल, तो ये साइन हमको इन्फॉर्म करेंगे और अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज योर ड्राइविंग हैबिट्स. These all are informatory sign. See, ये देखिए, first aid, this is hospital, this is eating, this is you will get a lunch over here, and here only snacks are available. So these all signs are informatory signs, which are very useful when you are going for a trip, right? Next, रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि डिफरंट कलर्स के कोई स्ट्रिप्स होते, जिसको मराठी में कहते पट्टे असतात, पांढऱ्या रंगाचे पट्टे, पिवळ्या रंगाचे पट्टे. तो एक ही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रोड के बीच में अगर कंटिन्यूस व्हाइट लाइन है या कंटिन्यूस येलो लाइन है, तो उसका मतलब होता है कि यू शुड नॉट ओव्हरटेक और यू शुड नॉट टेक एनी यू टर्न. म्हणजे रस्त्याच्या मध्ये जर पट्टा कंटिन्यूस असेल तर त्या ठिकाणी इट इज अन इमॅजिनरी वॉल अँड यू कॅनॉट क्रॉस दॅट वॉल. So only one thing is no overtaking and no U-turn. तो हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि कार चालवताना जेव्हा तुम्ही महाबळेश्वरला जातात, कुठं जातात, तर टर्निंगला असे पट्टे असतात सेंटर लाईनला, त्या ठिकाणी आपण ओव्हरटेक करायचं नाही, त्या ठिकाणी आपण U-turn मारायचा नाही. आता नेक्स्ट इज मोटरसाइकिल सेफ्टी, मोटर बाइक सेफ्टी. हाँ, आप सभी लोगों के बच्चों के पास घर में मोटरसाइकिल होगी, तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोटरसाइकिल जो भी है वो मोटरसाइकिल इज मोस्ट अनसेफ व्हीकल. अगर कोई अनसेफ है तो मोटरसाइकिल अनसेफ है, साइकिल से भी ज्यादा. और हम बच्चे लोग वो ये गाड़ी जब तक हमारे पास लाइसेंस नहीं है तब तक उसको हाथ नहीं लगाएंगे. मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि नया कानून जो आ गया है अभी, जो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हो चुका है, और इस कानून में ऐसा लिखा गया है कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, अगर वो बच्चा अंडर एज है और वो बच्चा अगर गाड़ी चलाएगा, तो उस केस में उसके पेरेंट्स को हम 3 साल की सजा सुनाएंगे. इट इज नॉन बेलेबल है, यानी आपको अगर पकड़ लिया तो आपको जब तक कोर्ट से कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ फायदा नहीं है, आपको अंदर ही बैठना पड़ेगा. साथ ही साथ यू हैव टू पे द पेनल्टी ₹25,000. और ये होने के बाद आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. साथ ही साथ जिसने गाड़ी चलाई, वो जो बच्चा है, उसको ही हैज टू फेस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. उसमें कोर्ट में पेशी होगी बच्चों के, लहान मुलांच्या. और साथ ही साथ वो लड़का जब तक 25 इयर्स तक नहीं होगा तब तक उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये गाड़ी हम किसी को चलाने नहीं देंगे. ये जो है इट इज मोबाइल बॉम्ब. हम कहते हैं कि ये मोबाइल बॉम्ब है, कब कहाँ पे गिरेगी पता नहीं. आपने देखा होगा परसों पुणे में अंडर एज लड़के ने गाड़ी चलाई कार, और वो गाड़ी इस तरह से एक्सीडेंट हुआ कि उसको निकालने में फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा और 2 घंटे लगे अंडर एज लड़के को गाड़ी में से बाहर निकालने के लिए. तो कृपया करके अपने बच्चों को ये गाड़ी मत देना. कुणालाही तुम्ही गाडी देऊ नका, 2 व्हीलर देऊ नका, कार देऊ नका. गाडी चालवणं सगळ्यात सोपी गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा. गाडीला लायसन्सला एज्युकेशन क्वालिफिकेशन लागत नाही. आपल्याकडे कुठल्याही जॉबला एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन लागतं, गाडी चालवायला लागत नाही, कारण की गाडी चालवायला एवढी गरज नसते, परंतु जबाबदारी जास्त आहे. आणि म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की आई वडिलांनी सगळे लाड करावेत, परंतु गाडी चालवायचे लाड करू नका, कारण नंतर काही झाल्यानंतर रडण्यात काहीही अर्थ राहत नाही. तर ही माझी सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की गाडी त्याच एज मध्ये चालवा जेव्हा तुम्हाला लायसन्स मिळेल. ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. 2 व्हीलर चालवताना हेल्मेट कंपल्सरी आहे. हेल्मेट सगळेजण घ्या. नवीन कायदा असा सांगतो की गाडी चालवणारा हेल्मेट घालेल, मागं बसणारा हेल्मेट घालेल, आणि 4 वर्षाच्या पुढचा जो मुलगा असेल तो देखील हेल्मेटचा घालणार आहे. आणि जर तुम्ही घातलं नाही हेल्मेट तर तुम्हाला जी पेनल्टी आहे ती 1,000 रुपये, आणि तुमचं लायसन्स आम्ही 3-3 महिने सस्पेंड करणार आहोत. आणि ह्याही पुढे मी पालकांना जाऊन सांगेन की तुमचं लायसन्स सस्पेंड झालेलं आता सगळ्या जगाला कळणार आहे, कारण की ते पब्लिक डोमेन मध्ये आम्ही पब्लिश करणार आहोत की सो अँड सो XYZ काय असेल ते, हिज लायसन्स इज सस्पेंडेड फॉर 3 months 6 months वॉट एव्हर. तर आपली बदनामी देखील अशी होणार आहे. साथ ही साथ हे लक्षात ठेवायचं, जे ट्रॅफिक व्हायोलेशन होईल त्या केसमध्ये आता नवीन जे आलेलं आहे तर सोशल सर्व्हिस कंपल्सरी केलेली आहे. म्हणजे काय, कोर्टाला जर असं वाटलं की तुम्ही गाडी चालवली, व्हायोलेशन केलेलं आहे, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला पोलिसांबरोबरच ट्रॅफिक कंट्रोलचं काम आता
कोट देईल किंवा हॉस्पिटलमध्ये मदतीचं काम देईल. म्हणजे तुम्हाला ऍक्सिडेंट हॉस्पिटलमध्ये 1 दिवस ड्युटी करावी लागेल वॉर्डन सारखी. तर ह्या देखील पनिशमेंट आता कायद्यामध्ये आल्यात आणि म्हणूनच पेरेंट्सनी ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. हेल्मेट घालताना ते ISI मार्कचं असावं, कसं घालावं हे सगळे डेमो सगळीकडे अवेलेबल आहेत, त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये जास्त जाणार नाही. जस्सी हेलमेट काय असतं सगळ्यांना माहिती है, सबको पता है हेलमेट क्या होता है, कैसे पहनना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी प्रेजेंटेशन है. सब तरफ ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन. नेक्स्ट इज सीट बेल्ट. सीट बेल्ट इज कंपल्सरी. टू वेयर सीट बेल्ट इज कंपल्सरी. प्रत्येक गाड़ी में, हर एक कार में अभी सीट बेल्ट है. अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो पेनल्टी है और पेनल्टी ड्राइवर देगा जो भी गाड़ी चला रहे. दो if suppose driver is having seat belt but the passengers who are not having seat belt, in that case the driver has to pay the penalty. म्हणजे मी सीट बेल्ट लावलाय परंतु मागच्या जर लावला नसेल तर त्याची पेनल्टी ड्रायव्हरनी द्यायची आहे. हे पण नवीन कायद्यात आलेलं आहे. आणि सीट बेल्टचा फायदा काय, क्या बेनिफिट आहे सीट बेल्ट का, तर सीट बेल्ट लावल्यामुळे आपल्या गाडीवरती कंट्रोल चांगला राहतो आणि इन इमर्जन्सी किंवा ऍक्सिडेंट जरी झाला तरी आपलं डोकं जे आहे ते त्या स्टेअरिंग वरती आपटत नाही. एअर बॅग्स असतात त्यामुळे कुशन सारखं आपण त्याच्यामध्ये सेफ राहतो, हेड इंजुरी होत नाही आणि म्हणून आपण सीट बेल्टचा वापर केला पाहिजे. सो सीट बेल्ट इज कंपल्सरी आणि सीट बेल्ट हे लाईफ सेव्हिंग साठी खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असतात, म्हणून सीट बेल्ट देखील आपण घातले पाहिजे. डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या, आपने देखा होगा कि हर जगह आप देख रहे हो कि गाड़ी चलाते समय लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं. तो हमने देखा है, अक्सर अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ व्हीकल एक्सीलेंट व्हीकल है, रोड एक्सीलेंट है, फिर भी हमारे यहाँ एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं. तो इसका प्रॉब्लम यही है, उसका कारण भी यही है कि जो मोबाइल पे बात करने से हमारा जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो इमीडिएट आधा मिनट भी हम उसी में रहते, जो भी हम बात करते हैं तो उसी मूड में हम रहते और उसके वजह से हमारे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं. तो और ये भी जैसे मोबाइल अपग्रेड हो रहे हैं उसके वजह से ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि मोबाइल का यूज हम न करें. जैसे हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे तो उस समय हमने मोबाइल ऑफ करना चाहिए और जैसे हम गाड़ी के बाहर आएंगे पार्क करने के बाद उसी टाइम हम मोबाइल का यूज करेंगे. तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का यूज करना नहीं चाहिए. उसके वजह से आपको काफी डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, चेंज हो जाता है, आपका मूड भी चेंज हो जाता है. अगर अच्छा न्यूज आ गया तो एक्साइट होते, अगर कोई डांट रहा है तो हमारा मूड भी खराब हो जाता है. तो उसका इफेक्ट हमको गाड़ी चलाने में होता है और उसके वजह से एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं. तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, ना कोई गैजेट्स का यूज करना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट हो सके. गाड़ी समझ और क्या होता है, हमने देखा होगा कि गाड़ी चलाते समय हम कार चला रहे तो साथ ही साथ हम फोन पे बात करते हैं, हम मैसेज देते हैं, हम लोगों के साथ बात करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं और इसके वजह से या सीढ़ी चेंज करते हैं. तो उस वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और डाइवर्ट होने के बाद हमको जो भी आगे चल रहा है वो दिखता नहीं है और उसके वजह से हम गाड़ी रोक नहीं सकते, ना गाड़ी का डायरेक्शन चेंज कर सकते. तो उसके वजह से भी हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. इसीलिए ये भी हम तय करें कि गाड़ी चलाते समय हमारा कंसंट्रेशन ठीक से रहे और हम ठीक से भी बैठे और हमको रोड भी दिखना चाहिए अच्छी तरह से. और इसीलिए हम कई लोगों को बोलते हैं कि जैसे आप ड्राइवर सीट पे बैठ रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, तो उस टाइम आपका 1 मिनट 2 मिनट मेडिटेशन कर दीजिए. अगर आपने ध्यान, जैसे आप स्कूल में आते हो तो स्कूल की प्रार्थना होती है, क्यों प्रार्थना होती है, तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहे. तो वैसे ही हमारा कंसंट्रेशन गाड़ी चलाते समय अच्छा होने के लिए हम अगर भगवान का नाम ले, किसी प्रार्थना करें तो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा और हमारा एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता है. देखिए विजुअल डिस्ट्रैक्शन है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, ऑडिटरी है, ये सभी हमको तकलीफ देते हैं और ये हमको टालना जरूरी है. यू मस्ट अवॉइड ऑल दिस डिस्ट्रैक्शंस. पेनल्टी इज नॉट द सोल्यूशन. तो ये अंतिम ये होता है, पर्याय होता है कि कोई अगर न करे, अगर किया है तो उसको पेनल्टी क्यों देना है. पेनल्टी अगर दे दी
तो उसको अवॉइड करना है, ऐसे लोगों को रोड पे न लाए, यानी बाकी के लोग सेफ रहने के लिए ये सब पेनल्टी होता है। लेकिन पेनल्टी लास्ट ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? तो हम मोबाइल का यूज न करें, हम ट्रैफिक के रूल्स ओबे करें। हाँ, एज ए स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब हम स्कूल में आ रहे या स्कूल से घर जा रहे, तो काफी बच्चे अपने ही मूड में बात करते हैं, उनके ध्यान में नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सामने कम से कम जिस रोड से जा रहे हैं उस रोड को हम पहचाने और उस रोड के ऊपर हम कंसंट्रेट करें, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। काफी लोग देखे हमने कि रोड क्रॉस करते समय मोबाइल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ईयरफोन पे म्यूजिक सुनते हैं, तो ये भी गलत है। तो चलते समय हमारा कंसंट्रेशन रोड पे ही होना चाहिए, रोड को ही हमने देखना जरूरी है और ट्रैफिक को ही हमें देखना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए बात बहुत गलत है ड्रंकन ड्राइविंग। फिर भी हम चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को बताएं कि जैसे आप पार्टी को जाते हैं या बैड हैबिट्स है आपको, तो आप इससे बचना चाहिए कि शराब पी के गाड़ी किसी की चलाना नहीं है। इट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कुछ है तो आपको यू विल बी पुट बिहाइंड द बार, और ये ठीक भी नहीं है। हमारे वजह से लोगों को तकलीफ हो, हमारे वजह से किसी का एक्सीडेंट हो, ये बहुत गलत बात है। तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि अगर आप कोई गलत बात कर रहे, गलत ड्रिंक्स ले रहे, तो उस समय आप गाड़ी चलाना नहीं। आप ड्राइवर को लेकर जाइए, गाड़ी वहीं पे छोड़ दीजिए, लेकिन शराब पी के गाड़ी चलाना नहीं है। नेक्स्ट इज हॉन्किंग। आपने देखा होगा, आपके पास बुलेट होगा, आपके पास अगर कोई कार है, आपके पास कोई बस है, तो आपने देखा होगा कि लोग अक्सर हॉन्किंग करते। तो ध्यान में रखिए कि अगर हॉर्न बजाया तो उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, और उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो हॉर्न कंटिन्यूस बजाना गलत है, मिनिमम यूज करना चाहिए। अगर जरूरत है, अगर कोई इमरजेंसी है या कोई आपके वजह से किसी को परेशानी है, धोखा है, तो इसी केस में हमें हॉर्न बजाना चाहिए। अननेसेसरी हॉन्किंग करना गलत बात है और इट बैड मैनर्स। तो हॉर्न को भी हम कम से कम यूज करना चाहिए। साइलेंस जोन कहाँ कहाँ पे हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए? तो यह है स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड रेसिडेंशियल एरिया। इस एरिया में हमने हॉर्न को बजाना नहीं है। अगर दिन में है तो यू कैन यूज हेडलाइट, सॉरी हेडलाइट के साथ भी हम लोगों को इंटीमेट कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्पीड कितना होना चाहिए? तो सबसे सेफ स्पीड है 30। अगर 30 स्पीड तक डैश भी हो जाए, किसी को आपने अगर ठोक भी दिया, तो भी उसकी बचने के आसार 90% होते हैं। तो ध्यान में रखिए, जैसे स्पीड आपका बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी फेटॅलिटी के रिस्क बढ़ जाती है। म्हणजे स्पीड थोडा जरी वाढला तरी इंजुरीचं सिरियसनेस वाढत जातो, वाचण्याची शक्यता कमी होत जाते। तर सगळ्यात बेस्ट स्पीड आहे, सेफ स्पीड आहे 30। तर आपल्या मोटरसायकलचा स्पीड 30 असायला आई वडिलांना सांगा, भाऊ बहिणीला सांगा की मोटरसायकलचा स्पीड 30 पेक्षा जास्त ठेवू नका। आणि अजून एक गोष्ट मी सांगतो, किती स्पीड जरी वाढवला तरी काही झालं तरी तुम्ही 1 किंवा 2 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ वाचू शकत नाही। त्यामुळे आहे त्या स्पीड मध्येच ठेवा, कमी स्पीड मध्येच ठेवा, उलट तुम्ही सेफ राहता, सिक्युअर राहता। म्हणून स्पीड जो आहे तो कंट्रोल मध्ये असला पाहिजे। आणि स्पीड कशावरती अवलंबून राहतो किंवा गाडी थांबवणं कशावरती अवलंबून राहतं? तर तुमच्या माइंडसेट आहे, तुमचं व्हेकल कंडिशन आहे, वेदर कंडिशन आहे आणि ब्रेकिंग कंडिशन आहे। आणि म्हणूनच ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आणि आपला स्पीड जो आहे तो आपण कंट्रोल मध्ये ठेवला पाहिजे। स्पीडमुळे ऍक्सिडेंट खूप होतात आणि कंट्रोल करायला वेळ कमी राहतो, डिस्टन्स जास्त लागतं ब्रेकिंगसाठी, आणि म्हणूनच आपण सेफ स्पीड ठेवला पाहिजे। स्पीड हा 30च असला पाहिजे, 30 पेक्षा जास्त ठेवू नका। ऍक्सिडेंट नवीन ह्याच्यामध्ये
आपण काय बघतो की ऍक्सिडेंट झाला तो नो बडी इज हेल्पिंग. अक्सर असं बघतो कि जैसे जैसे कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कोई उनको मदद नहीं करता. क्यों नहीं करते? तो उनको लगता है कि पुलिस परेशान करेगी. लेकिन नया जो कानून आ गया है गुड समैरिटन लॉ, इसमें कहा गया है कि अगर आपने वॉलंटरी अगर किसी को बचाने की कोशिश की तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा. साथ ही साथ ऐसे भी किया है प्रावधान कि अगर आपने एक्सीडेंट में मदद की तो आपको 5,000 रुपए का पुरस्कार गव्हर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा. तर हे लक्षात ठेवा की ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर तुम्ही 100% मदत करा, तुम्हाला कुठलाही त्रास होणार नाही. उलट तुम्हाला प्राइज मिळेल, गव्हर्नमेंट कडून एक अमाउंट मिळेल एनकरेज करण्यासाठी. साथ ही साथ त्याचबरोबर हेही लक्षात ठेवलं पाहिजे की ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर लोक जखमी माणसाला आपण पाणी देतो. काही झालं की पाणी पाणी देतात लोक, पाणी देते नहीं उसको पानी पिलाओ. तो ध्यान में रखिए कि अगर कोई इंजर्ड है तो किसी भी हालत में उसको पानी देना नहीं. जब तक डॉक्टर बोलेगा तब तक हम पानी नहीं देंगे, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. साथ ही साथ जैसे एक्सीडेंट होगा तो उसको हम मेडिकल एड देंगे, फर्स्ट एड देंगे और उसके लिए नंबर है एम्बुलेंस का 108, पुलिस का है 100 और फायर फाइटर का है 101. तो ये भी नंबर हमारे स्कूल के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज 108, व्हाट इज 100 और 101. तो ये भी ध्यान में रखिए कि जैसे एक्सीडेंट होगा तो उसको मदद करने की हमारी जिम्मेदारी है. साथ ही साथ देखिए आप थोड़े 2-4 कार्टून हैं वो देख लो कि ये बच्चों के लिए हमने बनाए. थोड़ा एक के बाद एक 10-12 हम कार्टून दिखाएंगे. टू व्हीलर जैसे एज होगा वैसे हम चलाएंगे, 18 के बाद ही हम टू व्हीलर को हाथ लगाएंगे. रोड क्रॉसिंग कहाँ करना है? तो जेब्रा क्रॉसिंग पे हमने रोड क्रॉस करना चाहिए और क्रॉस करते समय हमें कंसंट्रेशन रखना चाहिए, इधर उधर देखना नहीं चाहिए. साइकिल हम चलाते हैं तो साइकिल का स्पीड भी ठीक होना चाहिए. रोड हमारा जो रोड है वो सर्कस में से जैसे ट्रैक होता है वैसा ट्रैक नहीं है. रोड पे चलाएंगे तो साइकिल ट्रैक पर ही यूज करेंगे या लेफ्ट साइड में हम साइकिल चलाएंगे. स्कूल बैग जैसे कैरी करते हो तो वो उसका शेप, उसका डायमेंशन, उसका वेट भी सही होना चाहिए जो हमें कैरी करने में आसान हो. गाड़ी पे अगर मोबाइल पे हम बात कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है. और कहाँ जाना है ये देखिए, उसको जाना था गार्डन मिलने के लिए, कहाँ गया? हॉस्पिटल पहुंच गया. ऐसा उल्टा स्कूटर में ऐसा उल्टा बैठना गलत है, क्योंकि अगर गाड़ी रोक दी गई तो आप गिर जा सकते. म्हणजे आपण गाडीच्या उलट्या दिशेने पडू शकतो. न्यूटनचे लॉ तुम्ही बघितले असेल, पहिला लॉ, दुसरा लॉ, तिसरा लॉ. तर ह्या प्रकारे जर गाडी ज्या दिशेने चाललाय त्या दिशेनेच तुमची बॉडी मूव्ह होत असते, परंतु ब्रेक लावल्यावरती तुम्ही बाहेर पडू शकता, लागू शकता. रस्त्यावरती चालताना आपण कॉशियसली चालवलं पाहिजे. जंगलात चालवतो किंवा गल्लीत चालतोय तसं चालायचं नाही. इकडं तिकडं आपण बघितलं पाहिजे. अगर हम छोटे हैं तो हम हमारे पेरेंट्स का हाथ पकड़ के रोड पे चलेंगे. ऐसी सिचुएशन आ गई है कि रोड इतने एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, तो घर वालों को रोज हमारा ये करना चाहिए. आरती करतो ना वाढदिवसाला वगैरे, तशी करायची वेळ आज आलेली आहे. साइकिल एक बच्चे के लिए ना कि 2-3 बच्चों के लिए. राइट. आपने देखा होगा की चंद्र ग्रह, सगळे जे काही ग्रह आहेत ते एका ट्रॅजेक्टरी मध्ये मूव्ह होत असतात. तसंच रस्त्यावरती देखील आपण एका लाईन मध्ये चालवलं पाहिजे, म्हणजे मग आपण कुणाला धडकणार नाही. चंद्र आपल्याला धडकतो का पृथ्वीला? नाही. गुरु धडकतो का दुसऱ्या ग्रहांना? नाही. बुध धडकतो का? नाही. कारण प्रत्येकाचं रूट एक फिक्स आहे, ऑर्बिटरी फिक्स आहे. आणि त्याचप्रमाणे आपण पण रस्त्यावरती एका लेन मध्ये जर गाडी चालवली तर आपला ऍक्सिडेंट होणार नाही. ऐसा छोटे अगर हम आगे खड़े रहेंगे तो हमारे पापा या मम्मी देख नहीं सकते, इसीलिए अगर हाइट ज्यादा है तो हमें पीछे ही बैठना चाहिए. तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन जिसमें हमने रोड सेफ्टी के बारे में जो जो छोटी छोटी बातें थी वो सब हमने आपको बताने की कोशिश की है. अगर आपकी कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन.
Thank you, sir, for all your valuable views. We really appreciate the wealth of knowledge and insight you shared today. It will surely help us. Now, I hand over to the session to Farida Sayyed for the question answer session. Over to you, Farida ma'am. Good morning, everyone. Today, Sir has given a lot of knowledge about road safety rules. In fact, whatever the queries were there in our mind has been cleared by Sir through his presentation. But still, a little bit of queries are there. Our viewers are eager to know more about the traffic safety and life-saving skills. So let's begin with the question answer session. I request Mrs. Sangeeta Purohit to ask a question to our guest. Over to you, ma'am. Good morning, sir. I, Sangeeta, mother of Disha Purohit, studying in standard 2nd B, would like to ask you a question. Why is it important to teach life-saving skill to students? सर माइक ऑन करा. फरीदा मैडम रिपीट करें. हाँ, kindly repeat. Why is it important to teach life-saving skills to children? Okay. How you feel on road? हम रोड पे क्या महसूस कर रहे हैं? Are you safe on a road? No. So to make you safe, हम आपको, आपके पूरे परिवार को, हम पूरी सोसाइटी को सेफ करना चाहते, और इसीलिए हम रोड सेफ्टी का एजुकेशन देना चाहते हैं. और हमने प्रेजेंटेशन में यही देखा है कि आप पूरा सेफ होने के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो जब सभी जानकारी हमने आपको देने की प्रयत्न किया है. Yes, sir. When parents are preparing the children to become independent and self-sufficient individuals, it is important they make them learn some of the basic life-saving skills for emergency situations. Emergency situations often arise without any warning, and if you are not prepared for that, it might turn hazardous. Now, our student Ojasvi Dhangar is keen to ask a question to our guest. Over to you, Ojasvi. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. I, Ojasvi Dhangar, studying in 4B, would like to ask a question. How should children cross the road safely? My question is, my answer is very simple. You should cross the road on zebra crossing, right? Have you seen zebra crossing on a road? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Have you seen zebra crossing? Yes. So how you cross a road? On zebra crossing, through zebra crossing, or anywhere? At your will. So you should cross on zebra crossing. If there is no zebra crossing, then you just see that both sides are clear. That means you can see a road from right side, you can see road from the left side, and then you cross the road. Why? Because you must know the traffic situation from the right as well as from the left. And when you are crossing the road, first look to the right, to the left, and again to the right. And when you are crossing, just put your hand like this, parallel. Why? Because both side traffic, they will understand that your intention is to cross the road in which direction. So it indicates the direction in which you are crossing the road, right? If suppose you are in two mind, just stop there only and put your hand like this, so that the bus driver, truck driver, they will understand that there is a child and he's stop over there.
right? Don't cross the road while you are running. Don't cross when you are running or in hurry, right? In night, in a street light only you must cross. Don't cross through the edges or corner, because nobody will understand anybody is coming or not. There is a risk factor. So you must be seen and be seen. That is a very simple thing. हम लोगों को भी दिखे और लोग भी हमें देखना चाहिए, तो ही हम सेफ रोड क्रॉस कर सकते हैं, राइट? ठीक है, हैव यू अंडरस्टैंड? Thank you, sir. ओके. Yes, sir. Indeed, parents should make sure that their child walks on the side of the pavement away from the traffic. And now, I request Mr. Siddharth Shah to ask a question to our guest. I know that sir has explained about distracted walking very nicely, but still our parents have a little query, sir. So do clear their query. Thank you, madam. Good afternoon, everyone. Sir, I, Siddharth Shah, father of Dhruvi Shah, would like to ask a question to you. What is distracted walking? Sir, you must have seen when students are going to school or coming back from the school, what they do, what is their activity on the road. They are almost always they are interacting, or right, or they are talking on mobile, whatever, they are texting, or in the time of examination, they are, though they are walking, they are still keep reading themselves, right? So that is also a distraction. Or sometimes they are searching something in their bag to show their friends. Yes. So that kind of, it is also a distraction. Or some students, they are also start eating on the road also, or throwing something on the road. So everything, it will be a distraction. And because of the distraction, and because they are in their own world. Like this, sir. Yeah. So there is a distraction, and other road users, they don't understand what is going on. So there is a risk factor over there. Understood, sir. Thank Yeah. you, sir. So for that, you must teach our students or your children that you must concentrate at least on the road. In that, when you are crossing the road, at least crossing on the road, because risk is more on the crossing. Thank you, sir. Yeah. Indeed, sir has explained the concept of distracted walking in the most pleasing way. Now I request our principal ma'am, Mrs. Snehal Khataukar, to ask a question and give the view about the webinar. Sir, I would like to ask you, what is your concluding message to our viewers? Over to you, sir. My message to the parents and to the students is just follow the traffic rules, and to the parents was very simple: walk the talk. Whatever we have discussed, we must follow, and we must walk as per the rules. That is my simple message: walk the talk. Or you just put up as a role model. Parents must, student must tell their teachers that my parents, they are strict followers. They are obeying traffic laws. Yes, sir. And not violating the laws. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Very true, sir. It was indeed an excellent concluding message. All the viewers must have taken this note of it, isn't it? Today, we had an outstanding personality, Shri Anil Pantoji, for the webinar on the topic Road Safety Education. Sir, really our viewers gained a lot of knowledge on road safety. We are thankful to you, sir. You have shared your valuable time with us. Our viewers were enlightened with what problems we are facing for road safety, importance of teaching life-saving skills, how children should cross the road very safely, why should we not be distracted on the road, importance of signals on the road, and
what are the basic safety rules to be followed by us. After gaining this knowledge, our viewers are safe, isn't it? With this, I would like to share that start early, drive slowly, and reach safely. Thank you. Over to you, Sonal. Thank you so much. Thank you, ma'am. Expressing thankfulness energizes, enhances, and empowers. So, let us be grateful to people who make us up happy, imparts knowledge. They are the charming gardeners who make our soul blossom. So, I, Sonal Khavia, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, deem it with a great honor to propose a hearty vote of thanks. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's webinar a resounding success. My heart fills with lots of gratitude and respect to thank our today's speaker, Mr. Anil Pantoji sir, for enlightening us with enormous knowledge and for your valuable presence. Really, today's webinar was creditable. Thank you, sir, for your thought-provoking address. A heartfelt thanks to our chairman, Sri Subhash Parmar sir, committee members, trust members, principals, teachers, parents, and their students for their enormous support. A special thanks to our technical team for their unflinching support to make this webinar a grand success. Thank you all enthusiastic and encouraging viewers for joining us to Facebook Live and appreciating us. So get smart and use safety from the start. Thank you all. and Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhash Ji Parmar. A big thanks to our organizing team, Mrs. Nehal Khataukar, Principal, Mr. Kalpesh Darji, Team Leader, Mrs. Farida Sayyad, Teacher, Mrs. Sonal Khabia, Teacher, Mrs. Itisha Shah, Teacher, Miss Bhavika Rathod, Teacher, Miss Urvisha Rathod, Teacher, Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.